अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ़ हुसैन और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is basically a Greek and Latin word. Bio is a Greek word which means life, and diversity is a Latin word which means variability or variations. Its term was given by Walter G. Rosen. Definition of biodiversity is the biodiversity or biological diversity is the degree of variation within or among the species exist on different regions of the earth. It is comprised of different organisms such as bacteria, protozoa, algae, fungi, animals, and plants. In this definition, you know that biodiversity is the different forms of animals or organisms which exist on the earth. In this, forms of animals have different variations. In this variation, the variable form of life which can be exist on earth is called biodiversity. What is a species? A species is often defined as the largest group of organisms in which any two individuals are of the appropriate sexes or mating type can reproduce fertile offspring, typically by sexual reproduction. स्पेशी क्या है? स्पेशी एक जानदारों का ऐसा गुरु है जिसमें कोई भी दो जानदार आपस में मिलके अपने ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे पैदा कर सकें, उसको हम बोलते हैं स्पेशी। स्पेशी बेसिकली क्लासिफिकेशन का है, वो लोवेस्ट रैंक है in which two individuals of same group can be interbreed to produce offsprings. Types of biodiversity. There are three types of biodiversity. First is genetic diversity. Genetic diversity refers to the diversity of the gene pool of a given species or diversity at the DNA level. Genetic diversity can be inferred from what an animal looks like, but it is more accurately determined through direct assessments of a species' DNA. Genetic diversity is very important diversity in which every living organisms or every living thing have its own DNA. DNA is the building block of their hereditary characters or hereditary material which are transferred from parent to their offspring. But after that, DNA of all the living organisms are changed from each other. In this diversity, genetic diversity, each organisms depend upon for their DNA for genetic diversity. What is gene pool? The gene pool is the set of all genes or genetic information in a particular species. जीन पोल बेसिकली क्या चीज़ है? जीन पोल जो भी किसी एक जानदार में जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उस पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम उसको बोलते हैं कि इसका ये जीन पोल है जिसमें डीएनए सीक्वेंस होती है। नंबर सेकंड टाइप है species diversity. Species diversity is not only based on the number of different species present in a community but also the relative abundance of each species and their role they have in their community. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मीन्स हर जानदार की एक अलग अलग स्पीशीज़ होती है, यह तो कॉमन है, लेकिन कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है, उनके क्या क्या असरात हैं, वो किस से ज़्यादा रुजू करती है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में ये सारे मालूम किए जाते हैं, इसको सारे को मुताले किया जाता है। उसके बाद है थर्ड ecosystem diversity. It refers to the variability in habitat within a geographic area. Unlike genetic diversity and species diversity, ecosystem diversity considered both biological diverse and non-biological diverse of variability like temperature and sunlight. Basically, ecosystem diversity have different from region to region, because in this the organisms are depend for their habitats in which for example a lion live in a forest and a lion live in a polar region, so they have according to ecosystem diversity they are variable from each other because habitat impact on their lives directly. So variable of temperature, sunlight, water, coolness, hotness, they are all impact on organism's life. So what is habitat? The natural home or environment of an animal or plant or other organism is called habitat. जो रहायशगाह है किसी भी जानदार की, नेचुरल रहायशगाह जिसमें उसको पूरी जो उसकी ज़रूरियात की चीज़ मिल रही है, उसको हम जानदारों का हैबिटेट बोलते हैं। What is ecosystem? An ecosystem is consist of all the organisms and the physical environment with which they interact. इकोसिस्टम में दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक तो बायोटिक जानदार चीज़ें होती हैं, दूसरी अबायोटिक होती हैं जिनसे वो
इंटर रिलेटेड होते हैं। इकोसिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम या एरियल इकोसिस्टम। हर एक इकोसिस्टम की एक अपनी ही खासियत होती है, जिसमें जानदार गैर जानदार चीज़ों से लाइक सन, एयर, हीट इनसे वाबस्ता होते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इमेज फॉर्म। देयर आर द सेम जेनेटिक डाइवर्सिटी, डिफरेंस इन डीएनए अमंग इंडिविजुअल, स्पेशी डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पेशी इन अ गिवन एरिया। यहाँ पर देखा जेनेटिक डाइवर्सिटी में दिखाया गया है कि 3 फ्रॉग हैं जिनका डीएनए मार्कअप किया गया है कि वो तीनों का डीएनए एक अलग अलग फॉर्म में है, सेम स्पेशीज़ के हैं, तीनों फ्रॉग ही हैं लेकिन उनका डीएनए सैंपल अलग है। और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में दिखाया गया है कि प्लांट्स हैं, फ्रॉग है, एक ज़ेब्रा है, ये सारे अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ये भी डाइवर्स है। उसमें होता है थर्ड है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम दिखाया गया है, वेरिएशन ऑफ हैबिटेट इकोसिस्टम कम्युनिटीज़, वहाँ जो तालाब में मछलियाँ होती हैं, फ्रॉग होता है, कछुए होते हैं, और जो जंगल का इकोसिस्टम है वो अलग है, जो ग्रासलैंड का है वो बिल्कुल अलग है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आखिर बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। इट्स आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी एक तो हमारे इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करता है, मेंटेन करता है, रिसाइकिल करता है न्यूट्रिएंट्स को और पॉल्यूशन को रोकता है, फॉरेस्ट ज़्यादा पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिकल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए हम जैसे जैसे हमें जानदारों की पहचान होती जाती है, जैसे जैसे उनके अक़साम का पता चलता है, हम ज़्यादातर मेडिसिन्स फाइंड आउट करते हैं या दूसरी चीज़ें कोई डिस्कवर करते हैं। Medicines from natural account of usage by 80% by the world population. It also benefies the nature with lots of trees and animals found in different region which enhance the tourism. बायोडाइवर्सिटी है जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे या जानवर ग्रो करवाती है, जिसको वो प्रोटेक्ट करती है, जिससे टूरिज़्म बढ़ता है और डिफरेंट रीजन में दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर एंड फूड। बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हमें बहुत कीमती जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल रही हैं, जैसे वाटर है, रबर है, डाइज है, ऑयल है, फाइबर है, फूड है। Further, ecosystem provide crucial services such as pollination, seed dispersal, climate regulation, water purification, nutrient cycle, and control of agriculture pest. इकोसिस्टम में ये हमें सारी सर्विसेज मुहैया करता है, जैसे कि पौधों की पोलिनेशन ऑटो हो जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, सीड डिस्पर्सल हवा के ज़रिए, परंदों के ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए सीड फैलता है। क्लाइमेट रेगुलेशन, हमारे मौसमियात बदलते रहते हैं, क्लाइमेट हमारा बिल्कुल रेगुलेट रहता है, यह भी एक इकोसिस्टम की सर्विसेज है। वाटर प्यूरिफिकेशन, जो इकोसिस्टम है जो वाटर को प्यूरिफाई करता है, वाटर साइकिल कराता है, न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, एंड पेस्ट को कंट्रोल करवाता है। थैंक यू, काइंडली फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब एट एजुकेशनल अकेडमी फॉर बायोलॉजी। थैंक्स।